Hello, students. Today we are continuing Human Health and Disease, Lecture 8, Human Health and Disease. Lecture 8 we are discussing today. Okay, we will do questions, some of the important type of questions from this chapter. Last class we have discussed about drug abuse, alcohol abuse, okay. So question number 1 देखिए यहाँ पर, common cold is not cured by antibiotics, okay. Common cold not cured by antibiotics. Why it is not cured by antibiotics? Because it is caused by virus. Why it is not cured by antibiotics? Why? तो आंसर क्या लिखेंगे? Because it is caused by virus. It is caused by virus. ये वायरस से कॉज होने वाली डिजीज है एंड वायरसेस कैन नॉट बी किल्ड बाय यूजिंग जस्ट एंटीबायोटिक्स, कैन नॉट क्योर वायरल डिजीजेस. ओके, नेक्स्ट, मोड ऑफ इन्फेक्शन. मोड ऑफ इन्फेक्शन इन केस ऑफ निमोनिया. इन केस ऑफ निमोनिया में कैसे होता है मोड ऑफ इन्फेक्शन? So pneumonia disease is transferred through droplet method. Droplet infection. Right? And pneumonia is caused by two bacteria. There are two bacteria causing pneumonia. One is Streptococcus pneumonia. Another one is Haemophilus influenza. Right? What are the causative agent of pneumonia? Streptococcus pneumonia and Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza. And Haemophilus influenza. यहां पर और एक क्वेश्चन बन सकता है. Streptococcus pneumonia, this bacteria was used by which scientist for his experimental work? Streptococcus pneumonia was used by Griffith in his experiment. Griffith अपने एक्सपेरिमेंट में Streptococcus pneumonia यूज करते थे. And Haemophilus influenza, this bacteria is important because this bacteria is used for the isolation of first Ren enzyme. Discovery of Ren enzyme. Discovery of Ren. Hope all of you know Ren enzyme जो है HIND2. HIND2 was the first Ren enzyme discovered. From which bacteria? इन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. मतलब यहां पर ये क्वेश्चन जो है दो चैप्टर से कनेक्ट हो रहा है. नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया विच वाज आल्सो यूज्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन हिज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स बोल के अगर पूछेंगे तो यू शुड आंसर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. राइट? नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ निमोनिया which is also known for the discovery and isolation of first Ren enzyme बोलेंगे तो HIND2 लेंगे. Yes, हीमोफिलस का H ले लेंगे, इन्फ्लुएंजा का IN लेंगे. This is the name of Ren enzyme. Ren enzyme are used to cut the DNA. They are also called molecular सीजर. आप सबको मालूम है ये बात. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. ऐसे है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं हम आज. सो टुडेज क्लास डेफिनेटली इट विल बी मोर हेल्पफुल टू रिमेंबर ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड डिफरेंट ट्विस्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. माइक्रोस्पोरम
Microsporum belongs to which kingdom? Microsporum is a fungus. So hence Microsporum belongs to kingdom fungi. ये fungi kingdom में आता है. And can you name some other examples of kingdom fungi? Rhizopus, for example. Rhizopus. तो यहां पर जो बात हो रही है, Microsporum is a fungus. Name the organism which is belonging to the same kingdom of Microsporum. ऐसा क्वेश्चन आ गया. Name any other organism which is belonging to the same kingdom like Microsporum. So you should answer Rhizopus. Rhizopus is also called common bread mold. Bread fungus भी बोलते हैं इसको. So kingdom fungi में आता है, ये नोट करना बात. Next, what is the sedative and painkiller? Sedative and painkiller in surgically operated patients. In surgically operated patients. जिनकी सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए एक सेडेटिव, नींद आने के लिए सेडेटिव दी जाती है, विच इंड्यूसेस स्लीप एज वेल एज पेन किलर. कौन सा है केमिकल कंपाउंड या ड्रग विच इज सेडेटिव एज वेल एज पेन किलर इन सर्जिकली ऑपरेटेड पेशेंट? इसका आंसर जो है मॉर्फिन होगा. मॉर्फिन जो है सेडेटिव एंड पेन किलर बोलते हैं in surgically operated patients. Next, HIV causes reduction in number of which cells? Causes reduction in number of T helper cells. T helper cells. Okay, the patient of AIDS, his immune system become deficient, immunodeficient disease. Why the patient of AIDS patient immune system becomes weaker? What is the reason why his immunity is getting weaker? Because of reduction in the number of T helper cells बोलना चाहिए. HIV causes reduction in number of T helper cells बोलेंगे. Next, इंजेक्शन जो दिया जाता है, इंजेक्टेबल मटेरियल इज और मेडिसिन इंजेक्टेड इनटू द बॉडी थ्रू आर्टरीज और वेन. इंजेक्टेबल मटेरियल और मेडिसिन is injected through which part of the body or through which blood vessel? Injectable material or medicine is injected through. क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? अगर आपको कोई मेडिसिन देना है, पेशेंट को इंजेक्शन देना है, तो आप वो इंजेक्शन कहाँ लगाएंगे? वेदर यू आर गिविंग इंजेक्शन इन आर्टरी और वेन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. इंजेक्टेबल मटेरियल और मेडिसिन इज इंजेक्टेड थ्रू वेन बोलना चाहिए. थ्रू वेन्स, नॉट आर्टरीज. आर्टरी से नहीं देते भाई, बिकॉज आर्टरीज आर हैविंग हाई प्रेशर. आर्टरी में ब्लड है ना बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है. इफ यू पंक्चर एनी आर्टरी, ब्लड स्पर्ट्स आउट. दैट मीन्स ब्लड कम्स आउट वेरी फास्ट विथ हाई प्रेशर. सो इफ यू गिव इंजेक्शन इनटू द आर्टरी, the medicine will come out with high pressure outside. बाहर निकल जाती है. तो आर्टरी से इंजेक्शन नहीं देना है आपको. आर्टरी से नहीं देना है. किसके थ्रू देना है? वेन्स के थ्रू देना है. इंजेक्टेबल मटेरियल इज इंजेक्टेड थ्रू वेन्स बिकॉज वेन्स आर हैविंग लो प्रेशर. सो वेन्स में ब्लड है ना लो प्रेशर के साथ फ्लो होता है. अगर आप वेन्स में इंजेक्शन देंगे तो मेडिसिन बॉडी में एंटर हो सकती है. इफ एनी डॉक्टर ट्राइज टू गिव इंजेक्शन थ्रू आर्टरी, the medicine will come out with high pressure. वापस आएगी रिवर्स में. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. What is the safest method of detection of cancer?
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफेस्ट मेथड ऑफ कैंसर डिटेक्शन। सो बहुत सारे मेथड पढ़े हम कैंसर डिटेक्शन में। बायोप्सी कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, बट व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड बोल के पूछा है क्वेश्चन। सेफेस्ट मेथड फॉर कैंसर डिटेक्शन, फॉर कैंसर डिटेक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम? MRI बोलेंगे। व्हाट इज MRI? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड सेफेस्ट मेथड? बिकॉज इन MRI टेक्निक वी यूज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होते हैं विच आर नॉट हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, इसलिए सेफेस्ट मेथड फॉर कैंसर डिटेक्शन MRI बोलिए। Patient of malaria gets fever with chill in every 72 hours. In every 72 hours. 72 hours बोलो या 3 to 4 days बोलो. What is the reason why malaria patient is having fever with chill in every 72 hours और 3 to 4 days बोल के बोलेंगे? तो इसका बोलेंगे this is due to release of टॉक्सिन, हीमोजोइन बोल के टॉक्सिन रिलीज होता है, दैट इज कॉज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी ब्रेकडाउन होने से एक टॉक्सिन रिलीज होती है, पॉइजन रिलीज होता है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड हीमोजोइन। सो द मलेरिया पेशेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर विथ चिल इन एवरी 72 आवर, दैट इज बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हीमोजोइन बोलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, T lymphocytes are responsible. Who is responsible for graft rejection? Responsible for graft rejection. For graft rejection. Any transplanted tissue or organ. Till now, skin are transplanted from one person to another person. Kidneys are successfully transplanted. आईज ट्रांसप्लांट किए गए हैं, इवन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी सक्सेसफुली किया गया है। सो जो भी ट्रांसप्लांटेड टिश्यू और ऑर्गन है उसको हम ग्राफ्ट बोलेंगे। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन बोल तो आप बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, आल्सो कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। Cell mediated immunity or T lymphocytes are responsible for graft rejection. It is not because of antibodies. Question में confuse करने की कोशिश करेगा. It is not because of antibodies. Next, टिटनेस पेशेंट को क्या देना चाहिए? टिटनेस पेशेंट is immunized by using. टिटनेस पेशेंट is immunized बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे भाई? टिटनेस पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या है? टिटनेस इज ए डेडली डिजीज, और ये डेडली डिजीज को ठीक करने का मेथड क्या है? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बोलना चाहिए, रेडीमेड एंटीबॉडीज। प्री फॉर्म्ड, पहले से बने हुए जो एंटीबॉडीज होते हैं, दोज एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ टिटनेस पेशेंट। सो टिटनेस पेशेंट को इम्यूनाइजेशन करने का मेथड क्या है? प्री फॉर्म एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं यहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्सिनोमा क्या है? व्हाट इज कार्सिनोमा? इट इज ए कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, also one of the example for carcinoma is skin cancer. Cancer of epithelial tissue बोलो, epithelial tissue for example, skin cancer भी
कार्सिनोमा में इंक्लूडेड है, स्किन कैंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज एटीएस? एटीएस क्या है? एंटी टिटानस सीरम होता है। व्हाट इज एटीएस? एंटी टिटानस, एंटी टिटानस सीरम है। एंड दिस एंटी टिटानस सीरम हैज प्री-फॉर्म एंटीबॉडीज। इट हैज प्री-फॉर्म्ड, और यू कैन से रेडीमेड एंटीबॉडीज। प्री-फॉर्म एंटीबॉडीज होते हैं इनमें। एटीएस जो दिया जाता है पेशेंट को, जो टिटनेस से इन्फेक्टेड है, उस पेशेंट को हम क्या देते हैं? प्री-फॉर्म एंटीबॉडीज देते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्री-फॉर्म एंटीबॉडी इज गिवन टू द पेशेंट? एटीएस। एटीएस का नाम क्या है? एंटी टिटानस सीरम। सीरम मतलब इट इज ए पार्ट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर करेंगे तो सीरम मिलेगा, है ना? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। व्हाट इज सीरम? सीरम is equal to plasma minus clotting factor. From the liquid part of the blood, if you remove the clotting factor, what you get? Serum. Plasma minus clotting factors. It is called serum. What is the physiological barrier? Physiological barrier क्या होता है? सोचिए। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, ये सारी चीजें तो पढ़े हैं हम लोग। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर में, सो व्हेनेवर यू गेट द टर्म लाइक बैरियर, तो समझ जाना यहां पे बात हो रही है इन्नेट इम्यूनिटी की। किसकी बात हो रही है? इन्नेट इम्यूनिटी की बात हो रही है। फिजियोलॉजिकल बैरियर इज ड्यू टू इन्नेट इम्यूनिटी, एंड दिस फिजियोलॉजिकल बैरियर इज ड्यू टू टीयर्स इन आईज, सलाइवा इन माउथ, HCl इन स्टमक। ठीक है? Eyes are not example for physiological barrier, mouth is not example for physiological barrier, stomach is not example for physiological barrier. Who is example for physiological barriers? Tears in eyes, saliva in mouth, HCl in stomach. जब ये रहेंगे इनके प्लेस में, tears जब eyes में रहेंगे, सलाइवा माउथ में रहेगा, HCl स्टमक में रहेगा, तब जाकर ये क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं ये। ओके, याद रखें फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। क्वेश्चन पूछेगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेयर यू विल लुक फॉर स्पोरोजॉइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट। वेयर यू विल लुक फॉर, where you will look for मलेरियल पैरासाइट। अगर आपको मलेरियल पैरासाइट देखना है तो आप कहां देखेंगे, कहां पर चेक करेंगे? वेयर यू विल लुक फॉर स्पोरोजॉइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट स्पोरोजॉइट्स। अगर आपको स्पोरोजॉइट्स देखना है तो कहां पर देखेंगे? ऑप्शंस बता दो। चलिए, ये क्वेश्चन के ऑप्शन देखना जरूरी है, so that you will get idea. First option है salivary gland of freshly molted mosquito. Salivary gland of freshly molted mosquitoes में देखेंगे क्या आप स्पोरोजॉइट्स, या saliva of female anopheles mosquito, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो? और दो ऑप्शन है। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, जरा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। आरबीसी
ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, आरबीसी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन में देखेंगे क्या, या और एक ऑप्शन है स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए एलिमिनेशन करेंगे हम यहां पर थोड़ा सा। सो वी ऑल नो दैट स्पोरोजॉइड्स आर द infectious stage of प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो मलेरिया कॉज करते हैं, इनका जो इन्फेक्शियस स्टेज है जो ह्यूमन को अटैक करता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोजॉइड्स। सो वो स्पोरोजॉइट है, इन्फेक्शियस स्टेज है वो स्पोरोजॉइड्स। इफ ए क्वेश्चन व्हाट इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, तो आप बोलेंगे प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस स्टेज का नाम है स्पोरोजॉइड्स। चलिए आंसर कीजिए। तो मलेरिया के स्पोरोजॉइट्स आप कहां देखेंगे, वेदर यू चेक स्पोरोजॉइट्स इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली मॉल्टेड मस्किटो, या सलाइवा ऑफ एनोफिलिस मस्किटो, या आरबीसी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए आरबीसी तो आंसर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आरबीसी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इज हैविंग गैमेटोसाइट्स। गैमेटोगोनी, व्हाट इज गैमेटोगोनी? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, दोज आर प्रोड्यूस्ड इन द आरबीसी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो आरबीसी में गैमेट्स होते हैं, स्पोरोजॉइट्स नहीं होते। स्प्लीन भी नहीं हो सकता भाई। स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, spleen is also called blood filter, spleen is also called blood bank, spleen is also called graveyard of dead RBC. It is not storing sporozoites, नहीं हो सकता। अब दो बचे ऑप्शन। सलाइवरी ग्लैंड, बहुत सारे बच्चों को ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट दिखेगा, सलाइवरी ग्लैंड तो सही था। फ्रेशली माउल्टेड मस्किटो बोलते हो गलत। फ्रेशली माउल्टेड मस्किटो इज नॉट हैविंग स्पोरोजॉइट। Sporozoites enter into the mosquito salivary gland after when they bite to an infected person. जब एक मस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, that time gametocytes enter into the gut of the mosquito. Fertilization takes place inside the gut of mosquito. After that sporozoites are formed and stored in salivary gland. मतलब फ्रेशली नहीं बोल सकते आप। एग में से सब अभी न्यू बॉर्न मस्किटो है, क्या उसको स्पोरोजॉइट्स बाई बर्थ होते हैं? नहीं होते। स्पोरोजॉइट्स आर फॉर्म्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ए मस्किटो विच इज बाइटिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद बनते हैं उसके पास, इसलिए पहला ऑप्शन भी गया। सो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। अब बेटर होता सलाइवरी ग्लैंड भी होता यहां पर तो भी चलेगा, बट सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्किटो भी बोल सकते हैं, या सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्किटो भी बोल सकते हैं। फ्रेशली मोल्टेड मस्किटो नहीं बोल सकते। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, विच कैन बी डन ओनली बाय एलिमिनेशन। रॉन्ग ऑप्शन हटाएंगे तो करेक्ट आंसर निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स? डायग्नोस्टिक टेस्ट एग्जाम में पूछा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है फॉर एड्स? तो आप बोलेंगे पीसीआर। बिल्कुल, एलिजा भी बोल सकते हैं आप, एलिजा। पीसीआर क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट है ये, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। एड्स का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसका नाम पीसीआर है। और एक बात, पीसीआर हम कहां पे यूज करते हैं? पीसीआर आर यूज्ड इन, पीसीआर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पीसीआर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, पीसीआर के रिलेटेड। तो पीसीआर हम कहां पे यूज कर सकते हैं? बिकॉज पीसीआर जो है बहुत सारे चैप्टर में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी दिया हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर कर सकते हैं हम, और कहां पे हम पीसीआर कर सकते हैं ये सारी चीजें देखेंगे अभी। तो पीसीआर सबसे पहले हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन, टू फाइंड आउट जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी, जीन अबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं पीसीआर। जेनेटिक डिसऑर्डर, या नहीं तो आप जीन डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, जीन अबनॉर्मेलिटीज, जीन अबनॉर्मेलिटीज भी मालूम कर सकते हैं, जीन अबनॉर्मेलिटीज। ओके, एंड पीसीआर इज आल्सो यूज्ड टू amplify the DNA of fossil, to amplify the DNA of fossil, फॉसिल का डीएनए एम्पलीफाई करने में भी हम पीसीआर यूज कर सकते हैं। और पीसीआर का और एक है एप्लीकेशन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इन सस्पेक्टेड पर्सन, इन सस्पेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन में डाउट है कि उसको डिजीज है, कोई डिजीज है, तो वहां पे भी हम सस्पेक्टेड पर्सन में भी हम कर सकते हैं पीसीआर। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इन सस्पेक्टेड पर्सन, लाइक सस्पेक्टेड फॉर एड्स, यस, पीसीआर वहां पे भी यूज कर सकते हैं। नाउअडेज पीसीआर इज आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कोरोना, कोविड-19 जो वायरस है उसके डिटेक्शन में भी पीसीआर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स के लिए कौन सी ड्रग होती है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स आर गिवन विच ड्रग? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स को कौन सी ड्रग दी जाती है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स आर गिवन साइक्लोस्पोरिन ड्रग, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग obtained from ए फंगस, obtained from ए फंगस। कौन से फंगस से निकालते हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और एनसीईआरटी में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इवन इफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आर सक्सेसफुल, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली भी हो चुका है तब भी जो है साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग दी जाती है टू द अफेक्टेड पर्सन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पेशेंट, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पूरा लाइफ लॉन्ग उसको साइक्लोस्पोरिन खाते रहना पड़ेगा। इवन इफ transplantation is successful, then also cyclosporin A drug is given to the organ transplanted patient. It is acting as immunosuppressive drug है, ये immunosuppressive drug है। नेक्स्ट, यहां पे और एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कोलेस्ट्रम इज रिच इन एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए, सबको मालूम है भाई कोलेस्ट्रम इज रिच इन एंटीबॉडीज। विच एंटीबॉडीज? IgA एंटीबॉडीज। लेकिन यही बात जब एग्जाम में स्टेटमेंट बन के आ जाता है, चलो 4 स्टेटमेंट हैं, पहला स्टेटमेंट बन के आ गया, कोलेस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न बेबीज, बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजन। गलत, एंटीजन नहीं, इट इज रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न बेबी शुड टेक कोलेस्ट्रम बिकॉज इट इज रिच इन एंटीबॉडीज, इट प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। चिकुनगोनिया is caused by a virus, चिकुनगोनिया is caused by a virus। जो चिकुनगोनिया जो डिजीज है, caused by a virus, ये वायरस से होता है। spread through Aedes mosquito, the same mosquito which is acting as वेक्टर फॉर डेंगू डिजीज। डेंगू डिजीज में जो वेक्टर है सेम एडिस
वही एडिस यहाँ पे चिकनगुनिया को भी स्प्रेड करता है। कैंसर सेल में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है भाई? कैंसर सेल्स नॉट हैविंग contact inhibition. Cancer cells are not having contact inhibition. That means they never stop dividing even if they contact with other cells. जैसे ही कैंसर सेल दूसरे सेल से टकराता है ना, when one cancer cell come in contact with other cell, it is not stop dividing, it is continuously dividing. Cancer cell are not having contact inhibition. Normal cells whenever they come in contact with other cells they stop dividing, लेकिन कैंसर सेल ऐसा नहीं करते, कैंसर सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। कॉमन कोल्ड हाउ इट डिफर फ्रॉम निमोनिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमन कोल्ड वर्सेस निमोनिया। कॉमन कोल्ड इज ए डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, निमोनिया इज ए डिजीज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलना। कॉमन कोल्ड वर्सेस निमोनिया डिजीज, निमोनिया डिजीज। तो यहां पे देखिए कॉमन कोल्ड इज ए डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज ए डिसीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे नोज है वहां पर होता है कॉमन कोल्ड, इट इज ए डिजीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जबकि निमोनिया क्या है? निमोनिया इज ए डिजीज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसीज ऑफ निमोनिया इज ए डिजीज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इन विच डिजीज अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स आर गेट इन्फेक्टेड, in which disease alveoli affected, in which disease alveoli of the lungs gets filled with the fluid, ये सब निमोनिया है। निमोनिया डिजीज में स्किन, लिप्स, नेल्स दे आर टर्निंग टू ग्रे टू ब्लूइश कलर, ओके। निमोनिया इज आल्सो स्प्रेडिंग थ्रू ड्रॉपलेट, थ्रू स्नीजिंग। जब एक पर्सन स्नीजिंग करता है तो बहुत सारे ड्रॉप्स रिलीज होते हैं एयर में, दैट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। Common cold is also droplet infection. Pneumonia is also droplet infection, but there is difference between common cold and pneumonia. Common cold is a disease of upper respiratory system. ये डिजीज है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो ये, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इन्फेक्शन ऑफ अस्कैरिस ऑकर। एस्कैरिस का इन्फेक्शन कैसे होता है? एस्कैरिस इन्फेक्शन ऑकर थ्रू ड्रिंकिंग ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और ईटिंग ऑफ कंटामिनेटेड फूड विथ एस्कैरिस एग्स। एस्कैरिस के एग्स जो है वाटर के थ्रू जाते हैं बॉडी में। मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर्स इन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम ऑकर्स इन में कोई क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। गैमेट का फॉर्मेशन कहां होता है? आरबीसी में। लेकिन रेस्ट प्रोसेस कहां होता है? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट एनाफिलिस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? गट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्किटो। एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप पहले मुझे। गैमेट का फॉर्मेशन कहां हुआ था? प्लाज्मोडियम के गैमेट्स कहां पर तैयार हुए थे? प्लाज्मोडियम के गैमेट्स आरबीसी में तैयार हुए थे, राइट। एंड दोज आरबीसी विच आर हैविंग गैमेट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर इंजेस्टेड बाय फीमेल एनाफिलिस मस्किटो। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक और गट ऑफ मस्किटो। प्लाज्मोडियम के गैमेट्स मस्किटो के बॉडी में जाते हैं। फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? गट ऑफ मस्किटो। व्हेन जाइगोट डेवलप्स, जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। और जाइगोट कहां पर बन रहा है? जाइगोट फॉर्मेशन इज ऑकरिंग इन गट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मस्किटो।
डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है ना फर्टिलाइजेशन एनाफिलिस मस्कीटो में। सो देयरफॉर गट ऑफ फीमेल एनाफिलिस इसका आंसर लेंगे। ओके, सीरियोसिस ऑफ लीवर क्या है ये? व्हाट इज मीन बाय सीरियोसिस ऑफ लीवर? सीरियोसिस ऑफ लीवर किसको बोलते हैं? लीवर कैंसर को बोलते हैं। लीवर कैंसर सीन इन अल्कोहलिक पर्सन। जो पर्सन अल्कोहलिक है and the person who is taking alcohol, who is consuming, drinking alcohol from a long period of time, okay, 10-20 ईयर से अल्कोहल ड्रिंक करते आ रहा है, उसका लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सीरियोसिस ऑफ लीवर बोलेंगे उसको। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, और आपको वहां पर वैक्सीन्स मैच करना है, वैक्सीन मैच करना है। देखिए कॉलम 1 में क्या क्या है, देखिए यहां पर कॉलम 1 में ट्यूबरकुलोसिस है, वूपिंग कॉफ है, वूपिंग कॉफ बोल तो काली खांसी होती है, परसिस्टेंट कफ, डिप्थेरिया है, पोलियो है। ठीक है, कॉलम 2 में क्या है, देखिए कॉलम 2 में आपको मैच करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबके लिए काम का क्वेश्चन है। देखिए हार्मलेस वायरस फर्स्ट में दिया है, हार्मलेस वायरस, दूसरा है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, एंड रिमेनिंग 2 किल्ड बैक्टीरिया, हार्मलेस बैक्टीरिया, किल्ड बैक्टीरिया, हार्मलेस बैक्टीरिया बोल के आपको यहां पे क्या करना है। देखिए in column 1 diseases names are given, no doubt in that, and in column 2 vaccines are given. In column 2 type of vaccine, how the vaccine is made, how vaccine is made, यहां पे column 1 में disease दिया हुआ है, और यहां पे column 2 में vaccine formed from। अगर टीबी का ट्रीटमेंट है, टीबी के लिए वैक्सीन है, तो टीबी के लिए जो वैक्सीन यूज होता है उसके अंदर क्या होता है वैक्सीन में? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम। सो ट्यूबरक्लोसिस का जो वैक्सीन होता है उसके अंदर होता है, देखिए हार्मलेस बैक्टीरिया, ये टीबी के लिए, हार्मलेस बैक्टीरिया टीबी के लिए। ठीक है, वूपिंग कॉफ में क्या यूज करेंगे? वूपिंग कॉफ में किल्ड बैक्टीरिया यूज करेंगे। वूपिंग कॉफ में जो वैक्सीन बनाई जाती है वूपिंग कॉफ में किल्ड बैक्टीरिया। वी ऑल नो वैक्सीन इज मेड अप ऑफ आइदर लाइव वीक फॉर्म ऑफ पैथोजन और डेड पैथोजन। वैक्सीन इज मेड अप ऑफ डेड पैथोजन और वीक फॉर्म ऑफ पैथोजन बोलते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो वैक्सीन है उसमें हार्मलेस बैक्टीरिया है, मतलब इनएक्टिव बैक्टीरिया है, वीक पैथोजन है। वूपिंग कॉफ के लिए किल्ड बैक्टीरिया, डिप्थेरिया के लिए जो है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है, डिप्थेरिया के लिए इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है। डिप्थेरिया इज आल्सो कॉल्ड गाल-घोटू डिजीज इन विच फेरिंग्स गेट अफेक्टेड। और पोलियो का जो वैक्सीन है दैट इज मेड अप ऑफ हार्मलेस वायरस। पोलियो का मैच तो हो जाएगा, सबको मालूम ही है पोलियो एक वायरल डिजीज है, तो मैच हो जाता हार्मलेस वायरस। ठीक है ना, सबको जरा सा क्लियर कर लीजिए। ये जाएगा किल्ड वैक्सीन, वूपिंग कॉफ बी के साथ जा रहा है, ये किसके साथ जा रहा है? ए के साथ।
ये बी के साथ, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन सी के साथ जा रहा है, हार्मलेस वायरस डी के साथ जा रहा है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विच वैक्सीन इज कॉल्ड ट्रिपल वैक्सीन? ट्रिपल वैक्सीन किसको बोलेंगे? डीपीटी इज ऑल्सो कॉल्ड, डीपीटी वैक्सीन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल वैक्सीन बोलेंगे। ट्रिपल वैक्सीन बिकॉज डीपीटी वैक्सीन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 3 टाइप ऑफ डिजीजेस। 3 डिजीजेस का ट्रीटमेंट है यहां पर डीपीटी में। डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटानस। डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटानस। ट्रिपल वैक्सीन किसको बोलेंगे बोल के पूछेगा, देखिए। एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन में एंटीबॉडी डेफिशिएंसी हो गई है, मेरा क्वेश्चन समझिए आप। इफ यू सस्पेक्ट ए पर्सन विथ एंटीबॉडी डेफिशिएंसी, देन which confirmatory test you are going to conduct for antibody deficiency? अगर किसी पर्सन में एंटीबॉडी डेफिशिएंसी है तो उसको कंफर्म कैसे करेंगे आप? If you suspect antibody deficiency in a person, then how you will confirm it? How you will confirm it? कैसा कंफर्म करेंगे आप इसका? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरम अल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन ऑप्शंस हैं। सीरम अल्ब्यूमिन एक ऑप्शन है, सीरम ग्लोब्यूलिन एक ऑप्शन है, एंड वन मोर फाइब्रिनोजन एक ऑप्शन है यहां पर, या हीमोसाइट्स एक ऑप्शन है। व्हाट इज द बेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट टू शो दैट पर्सन इज अंडर एंटीबॉडी डेफिशिएंसी? किसी को एंटीबॉडी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, इसको कंफर्म करना है, तो आप कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे? 4 ऑप्शंस हैं, सीरम अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, हीमोसाइट्स। सबसे पहले सुनिए यहां पर, ये अल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन है क्या? आवर प्लाज्मा, आवर ब्लड प्लाज्मा इज हैविंग 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन्स बोल रहे हैं उनको, प्लाज्मा प्रोटीन्स बोल रहे हैं हम। कौन कौन से हैं प्लाज्मा प्रोटीन? अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स। हीमोसाइट्स बोलते ब्लड सेल्स हैं, हीमोसाइट्स आर द ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोसाइट्स। तो अल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है बता सकते हैं आप? अल्ब्यूमिन ब्लड प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, अल्ब्यूमिन का फंक्शन, अल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, अल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। इसलिए अल्ब्यूमिन का टेस्ट नहीं करेंगे हम यहां पर, अल्ब्यूमिन से नहीं पता चलेगा। आपको क्या करना है? एंटीबॉडी डेफिशिएंसी हुई है एक पर्सन में, एंड यू आर गोइंग टू कंफर्म इट, यू आर गोइंग टू प्रूव इट बाय कंडक्टिंग ए टेस्ट। एक कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे हम, और टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि उसको एंटीबॉडी डेफिशिएंसी है। तो वो टेस्ट कैसा करेंगे हम? अल्ब्यूमिन का फंक्शन पहले याद रखिए, अल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ग्लोब्यूलिन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ग्लोब्यूलिन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। आपके प्लाज्मा में जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो आपके एंटीबॉडीज बना रहा है। सो देयरफॉर, so if a person is having antibody deficiency, then he should go for a confirmatory test, globulin test. If a person is having good globulin level in his plasma, that means he is having good antibodies in his blood, antibodies भी ठीक रहेंगे। फाइब्रिनोजन क्या है? फाइब्रिनोजन इज ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। So if a person is under suspect
If a person is suspected for antibody deficiency, then his plasma, or you can say serum globulin, should be tested. If serum globulin level is high, antibody level is also high. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर और एक क्वेश्चन सुनिए आप, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटो इम्यून डिजीज? Which of the following is not autoimmune disease? Not autoimmune disease. ये क्वेश्चन पूछा है नीट एग्जाम में। 4 ऑप्शंस आर गिवन: सोरियासिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरियासिस पी साइलेंट है, और रिमेटॉइड अर्थराइटिस, arthritis, and third option vitiligo, and fourth option Alzheimer's disease. कौन सा ऑप्शन लेंगे आप? जल्दी से बोलिए अब यहां पर। अल्जीमर्स डिजीज। जल्दी से बताइए। व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है व्हेन आवर ओन एंटीबॉडी फेल्स टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड व्हेन आवर ओन एंटीबॉडी स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग आवर ओन बॉडी सेल्स, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। एंड यहां पर जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन, सोरियोसिस, ऑटो इम्यून डिजीज, ये सारे देखेंगे हम। सोरियोसिस इज ए स्किन डिजीज दैट कॉजेस ईचिंग और सोर पैचेस ऑफ थिक रेड स्किन। सोरियासिस क्या है सुन लीजिए। सोरियासिस मतलब ईची सोर्स ऑन स्किन, पूरा स्किन के ऊपर जो है सोर्स बन जाते हैं, वुंड्स बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोरियासिस डिसीज बोलेंगे। ईची और सोर, थिक पैचेस ऑफ रेड स्किन, थिक पैचेस ऑफ रेड स्किन, थिक पैचेस ऑफ रेड स्किन। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि पूरे बॉडी के ऊपर स्किन जो है रेड रेड पैचेस बना लेते हैं, पूरे बॉडी के ऊपर रेड पैचेस, और उसमें थोड़ी बहुत ईचिंग भी रहेगी, दैट इज सोरियासिस। एंड सोरियासिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज बोल रहा हूं मैं। फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो आप सब लोग जानते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज इन विच एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय साइनोवियल मेम्ब्रेन। यहां पे क्या होता है बोलिए? डिस्ट्रॉय साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो बोन्स में जॉइंट है, साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन होता है, एंड द पेशेंट इज हैविंग सीवियर टाइप ऑफ जॉइंट पेन, बहुत ज्यादा जॉइंट पेन रहेगा, दैट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। देन व्हाट इज विटिलिगो? Vitiligo is having white patches on skin. White patches on skin. White patches on skin. आप देखे रहते हैं विटिलिगो। विटिलिगो एक डिजीज है जहां पर आफ्टर सर्टेन एज कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ऐसे पूरे बॉडी के ऊपर व्हाइट 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 पैचेस बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड विटिलिगो। दिस इज आल्सो ड्यू टू autoimmune disorder. And Alzheimer's disease is caused due to deficiency of neurotransmitter acetylcholine. Deficiency of neurotransmitter acetylcholine. So neurons are communicating with each other. Neurons are communicating with each other because of acetylcholine, and the patient, Alzheimer's disease patient, उनके बॉडी में acetylcholine की कमी हो जाती है। So ये Alzheimer's disease, it is not an autoimmune disorder लिखना चाहिए, it is not an autoimmune disorder. Psoriasis मतलब own antibodies attack skin. Rheumatoid arthritis, own antibody destroy synovial membrane. Vitiligo, own antibodies destroy melanocytes, skin cells which produces pigment. And Alzheimer's disease में क्या हो रहा है? Deficiency of acetylcholine.
एसिटिल कोलाइन की कमी हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए। चलिए नेक्स्ट we will see elephantiasis disease is chronic inflammation of lymphatic vessels of lower limbs, right? And that elephantiasis disease caused by which pathogen? Wuchereria bancrofti. Wuchereria bancrofti causes which disease? Causes elephantiasis. And what are the larva of these Wuchereria bancrofti? Its larva, इनके larva को क्या बोलते हैं हम? Its larva are called microfilaria. बोले. And these larvae are having nocturnal periodicity. It has nocturnal periodicity. That means during night time they migrate to the peripheral blood circulation system. It comes to the blood capillaries, it comes to the minute blood vessels below the skin during night time. During daytime they resides in lymphatic vessels of lower limbs, है ना, पैर में जो लिम्फेटिक वेसल है वहां पर जाके रहते हैं। लेकिन नाइट टाइम में ये पूरा बाहर निकल के स्किन के नीचे आ जाता है बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी। नॉक्टर्नल मतलब नाइट टाइम दे आर एक्टिव। नेक्स्ट एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, डिजीज विद द पैथोजन, एंड हियर सम ऑफ द डिजीजेस आर गिवन। कॉलम वन में कौन कौन से डिसीज दिए हुए हैं देखिए। Gonorrhea is given. Gonorrhea, syphilis, genital warts, AIDS. Gonorrhea, syphilis, genital warts और AIDS. याद रहे, these are all STD, sexually transmitted diseases हैं ये। और कॉलम 2 में क्या किया है, वो पैथोजन का नाम लिखा है कॉलम 2 में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में भी पढ़े हैं आप, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में पढ़े हैं। सबसे पहले यहाँ पे HIV है, फिर नाइसेरिया है, ट्रिपोनिमा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। HIV is given here, Neisseria is given, Treponema is given, and one more, human papilloma virus is given. Human papilloma virus. So here, gonorrhea, as we know, it is a sexually transmitted disease. It is spread through Neisseria. Neisseria gonorrhea, bacterial sexually transmitted disease है. Syphilis caused by Trypanosoma pallidum, Treponema pallidum बोलते हैं. Genital warts is caused by human papilloma virus. Human papilloma virus भी लिख दीजिए यहाँ पर. Human papilloma virus. AIDS, as we all know, HIV. AIDS caused by HIV. So next, HIV के ऊपर भी एक क्वेश्चन है. HIV, as we all know, it is a retrovirus. It is a retrovirus, and the retroviruses are also best vector for gene delivery for animal system. If you want to transfer gene, if you carry genes from one animal cell to other cell, that time retrovirus is used as the best vector. लेकिन वो जो रिट्रोवायरस हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़े हैं, दोज रिट्रोवायरसेस आर डिसआर्म्ड. डिसआर्म का मतलब है बिफोर यूजिंग देम इन जीन ट्रांसफर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मेड डिसआर्म्ड, देयर पैथोजेनिक जीन्स आर डिलीटेड. उनके पैथोजेनिक जीन डिलीट कर देते हैं. डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस, डिसआर्म रिट्रोवायरस यूज फॉर जीन डिलीवरी, यूज फॉर जीन थेरापी भी बोल सकते हैं, या जीन डिलीवरी सिस्टम बोल सकते हैं. देयर आर टू वायरसेस विच आर यूज फॉर जीन थेरापी. पूछेगा
Which virus is used for gene therapy? What is gene therapy? Replacement of defective gene by a normal functional gene in case of some of the gene disorders like SCID. SCID पेशेंट में हम क्या करते हैं? जीन थेरापी करते हैं. पढ़े हैं ना SCID जीन थेरापी. सो जीन थेरापी का मतलब है faulty or defective gene. Faulty or defective gene is replaced by a normal functional gene is called gene therapy. ओके तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं HIV जो रिट्रोवायरस है it is used for gene delivery for gene therapy, but before using it in gene therapy it is made disarmed. That means its pathogenic genes are deleted. No, HIV has two molecules of single stranded RNA. HIV has two molecules of single stranded RNA and reverse transcriptase also. Reverse transcriptase enzyme is also present in HIV. Reverse transcriptase enzyme. अभी हम बात करेंगे जनरल और एक बात करेंगे यहां पर हाउ टू प्रिपेयर. प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए बिकॉज लॉट्स ऑफ द चैप्टर आर कंप्लीटेड. बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. बहुत सारे बच्चों के रिप्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट हो गया है. कुछ स्टूडेंट को एक दो चैप्टर मिसिंग होंगे बट जेनेटिक्स मॉलिकुलर बेसिस कंप्लीट हो गया है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट. तो अभी यहां पे हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर बायोलॉजी. बायोलॉजी में आप क्या करना चाहिए इफ यू वांट टू डू ए गुड स्कोर इन बायोलॉजी. 340 प्लस करना चाह रहे हैं मार्क्स बायोलॉजी में तो क्या करना है. कुछ बच्चों के सेक्शन डिवीजन के वक्त जो है चैप्टर छूट गए होंगे जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. मैं उसको करा दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेंशन मत लो उसका. ठीक है अभी हम बात करेंगे हाउ टू डू ए गुड स्कोर इन बायोलॉजी. 340 प्लस कैसा जाना है. एवरीवन शुड स्कोर 340 प्लस इन बायोलॉजी. तो कैसे करना है देखिए. अब फर्स्ट यू शुड गो थ्रू द नोट्स. क्लासरूम में मैं जितना बोर्ड पर लिखता हूं ना वो सारे आपके पास रहना चाहिए पॉइंट्स. दोज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, टू सॉल्व द क्वेश्चंस, टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम. सारे चीजें नोट्स में मिल जाएंगे आपको. नोट्स होने के बाद एनसीईआरटी करना चाहिए. सो एवरीवन नोज एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाउंडेशन बेसिक बुक है. वहां से ही क्वेश्चन आते हैं. आउट ऑफ 90 अराउंड 85 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही बनते हैं. तो फिर स्कोर क्यों नहीं होता. सब बच्चे क्यों नहीं करते स्कोर 340 प्लस. उसका एक रीजन है. एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में नॉट अंडरस्टूड लाइन्स शुड बी अंडरलाइंड. जो लाइन आपको नहीं समझने आ रही है उसको अंडरलाइन करना चाहिए. हाइलाइटर यूज करना चाहिए वहां पर. Those lines which are not understood, those lines should be highlighted. हाइलाइटर पेन ले लो और हाईलाइट करो. जो लाइन आपको नहीं समझने आ रही है बात समझ जाओ जल्दी से. जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कोई चीज आपको समझनी नहीं है तो इमीडिएटली अंडरलाइन करना चाहिए. एड्स इज कॉज्ड इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर. इंट्रावेनस ऐसा नहीं बताया कि AIDS is not seen in those patients who are having drugs through orally. orally नहीं हो रहा है. जो AIDS देखा जा रहा है वो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर जो वेन्स में ले रहे हैं. अब ये नहीं मालूम हो रहा आपको इंट्रावेनस तो अंडरलाइन करिए. अंडरलाइन करके रखिए. सेडेटिव नहीं समझने आ रहा. सेडेटिव एंड पेन किलर अंडरलाइन कीजिए. ऐसे जो है जितने भी एनसीईआरटी में नहीं समझने आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करके रखो. ठीक है. जब भी आमने सामने बात होगी ना तो आप जब कांटेक्ट में आएंगे तो
क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स। जब हमारे डाउट सेशन होंगे तो आपके पास डाउट तो रहना ना, आपके पास बुक में अंडरलाइन करे सो। ओके, ये नॉट अंडरस्टूड लाइन शुड बी अंडरलाइंड कंपल्सरी। और इजी बट फॉरगेटेबल, easy but forgettable lines written in margin। जो easy है, बहुत easy है, लेकिन हम भूल सकते हैं उसको। इतना easy है कि भूल जाएंगे हम वो। जब हम जीन थेरापी पढ़ रहे हैं वहां लिखा होगा रहेगा जीन थेरापी, वी यूज रिट्रोवायरस, वी यूज एडिनोवायरस, JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज कंडक्टेड इन द ईयर 1980। तो ये सारे जो इजी चीजें हैं, लेकिन हमें डिफिकल्टी हो रही है टू रिकॉल देम। जब भी एग्जाम में जा रहे हैं भूल जा रहे हैं, तो ऐसे चीजों को आप मार्जिन में लिख के रखिए। एनसीईआरटी की मार्जिन में बुक पढ़ते वक्त आपको मालूम होगा, यस दिस इज वेरी इजी, ऑफ कोर्स इट इज इजी बट फॉरगेटेबल, भूल सकते हैं हम आराम से। लिखिए मार्जिन में। इंटेस्टाइनल परफोरेशन कहां पर हो रहा था? टाइफाइड में। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कहां हो रहा था? अस्कैरियासिस में, राइट? तो ऐसे वर्ड्स जो थे ना, की वर्ड्स होते हैं डिसीज के, या कोई भी हर टॉपिक के की वर्ड्स होते हैं, वो की वर्ड्स आप है ना मार्जिन में लिखना चाहिए। एंड दोस पॉइंट शुड नॉट बी लॉन्गर। मार्जिन में छोटे छोटे पॉइंट्स रहना, लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। सो दैट बिफोर एग्जाम, जब आप एग्जाम लिखेंगे फाइनल नीट एग्जाम से पहले, नॉट अंडरस्टूड लाइंस, अंडरस्टूड बट इजीली फॉरगेटेबल लाइंस, ये दो चीजें अगर क्लियर करके बैठेंगे ना एग्जाम में हम, तो डेफिनेटली 340 जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट डायग्राम भी नहीं करते। डायग्राम्स, यू शुड फोकस ऑन दी डायग्राम्स। एग्जाम में डायग्राम देगा लेबलिंग करने के लिए, ऐसा मत सोचो आप। डायग्राम से ज्यादा क्या पूछता है वो? डायग्राम बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन। दे कन्वर्ट द डायग्राम इनटू स्टेटमेंट्स। HIV की लाइफ साइकिल है, उसके ऊपर स्टेटमेंट बना देगा। समझ रहे हैं ना बात? तो डायग्राम अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा आएंगे करने। सो लाइक दिस, यहां पर भी बायोलॉजी में भी कुछ ऐसा सिस्टमैटिक वर्क करेंगे तो 340 होगा। इफ यू डोंट डू सिस्टमैटिक, जस्ट ओवर कॉन्फिडेंस, बायोलॉजी इज इजी एंड यू कैन स्कोर 100% मार्क्स, 360 आराम से आ जाएंगे, ऐसा सोचना गलत है। आप जो है सिस्टमैटिक वे में पढ़िए, डेफिनेटली 360 आउट ऑफ 360 ले सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट। बट इफ यू डू सिंसियरली, कॉन्शियसली, है ना, पूरे एफर्ट्स लगा के अपने 100%, तब हो सकता है 360 पॉसिबल है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में जो है हम एडोलेसेंस और ड्रग अब्यूज को कंटिन्यू करना है। विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास। विल स्टॉप हियर। थैंक यू।